Now this is my another lecture on three-dimensional geometry for 11th class students. In the previous lecture I have discussed about the coordinates of a point in a space, then I have discussed about the distance formula, then about the section formula, then also I have given the definition of direction cosines of a line which is in a space. Now today I am going to discuss some another thing. I will tell you one thing, that if you have x-axis, y-axis and z-axis, if you have x-axis, y-axis and z-axis, right? Or if you have x-axis and only y-axis, once you are in the two-dimensional case, this is xo x dash and yo y dash. See, this is the plane, this is a plane. X-axis and y-axis divide this plane into 1, 2, 3 and 4 quadrants. This is in two-dimensional case. So two-dimensional case में x-axis और y-axis पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंटों में डिवाइड करता है, 4 क्वाड्रेंटों में. लेकिन x-axis, y-axis एंड z-axis स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है. यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वो पूरे स्पेस को कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है? 8. उनको ऑक्टेंट्स कहते हैं. इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं. जब प्लेन डिवाइड होता है किससे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तब हम उनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं. नाउ यू नो इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं. इस क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है. इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं. इस क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है. यह आपको पता है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में. बट वी आर इन द थ्री डायमेंशनल केस. सो इन थ्री डायमेंशनल केस व्हाट वी टेक ए स्पेस. नाउ वी हैव ए स्पेस में हम एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं और जेड एक्सिस लेते हैं. एक्चुअली ये एक्स एक्सिस का कौन सा हिस्सा है? पॉजिटिव वाला. ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला है. ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव है. ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव है. और ये जो हमारे पास बन जाएंगे ऑक्टेंट्स, ये टोटल ऑक्टेंट्स जो है वो कितने बनेंगे? 8. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस डिवाइड the space into 8 octants, and also x axis and y axis divide plane in 4 quadrants, 1, 2, 3, 4. But here are how many octants? Here we have 8 octants. Now in case of quadrants, in first quadrant both are positive. In the second quadrant this is negative, this is positive. In the third quadrant this is negative, this is negative. In the fourth quadrant this is positive and this is negative. But what about the octants? Now you remember this table. This is the octant number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now we have 8 octants. In these 8 octants we have x, y and z. These are the x axis, y axis, z axis. यानी x क्या है फर्स्ट ऑक्टेंट में, y क्या है फर्स्ट ऑक्टेंट में और z क्या है फर्स्ट ऑक्टेंट में. In the first octant all are positive. See, all are positive. But in the second octant first is negative, then positive, then positive. In the third octant negative, negative and positive. In the fourth octant positive, negative and positive. In the fifth octant positive, positive and negative. In the sixth octant negative, positive and negative. In the seventh octant negative, negative and negative. In the eighth octant positive, negative and negative. Right? For example, I have any point. I have a point 4, 5, 6. This is a point. Where this point lies? This point lies in the space. Now space कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं? We can divide a space into 8 octants. Now ये किस octant में lie करता है? ये भी positive है, ये भी positive है, ये भी positive है. So positive, positive, positive. That means this point lie in the first octant. ये first octant में है. Suppose we have -4, 5 and 6. ये भी तो एक point है space का. लेकिन स्पेस का जो पहला है ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है. सो नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव. दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज इन द सेकेंड ऑक्टेंट. नाउ इफ यू हैव -4, -3 and 2, if you have like this -4, -3 and 2, in a negative, negative and positive, this is negative, negative and positive. That means this point lie in the third octant. Similarly, this point lies in the fourth octant.
if positive, negative, positive. So similarly, if you have any point, say 4, -3 and -2, suppose you have this point, positive, negative, negative, positive, negative, negative, that means this is in the 8th octant. So this point is in the 8th octant. So in this way you can be able to determine the position of a point in a space. वो उसकी position कहाँ है, वो space में किस octant में lie करता है. This is very important table which we have to remember, right? So after this I will come to the first exercise of textbook NCERT. मैं पहली exercise पे आ रहा हूँ. देखिए पहली exercise में मेरा क्या मसला है. Very simple exercise जिसके लिए मुझे इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मुझे इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे मेरे पास है, सपोज आई हैव, दिस इज एक्सरसाइज 12.1. एक्सरसाइज 12.1 इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, a point on x-axis. What are its y and z coordinates? What are its y and z coordinates? See, a point on x-axis. What are its y and z coordinates? Say this is x-axis. जो भी point x-axis पे होगा उसमें x होगा लेकिन y और z नहीं होगा. जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस उसमें x होता है और y और z नहीं होता है. सो ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स y एंड z कोऑर्डिनेट्स? सो y एंड z कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हैं? y भी इसका 0 है और z भी इसका 0 है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है, राइट? फिर है ए पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट? Again, you have x-axis, y-axis and z-axis. X-axis, y-axis and z-axis. Now you have a point in xz plane. xz plane. xz plane में जो भी point होगा उसमें x भी होगा, उसमें z भी होगा, लेकिन उसमें y नहीं होगा. यानी x भी होगा, y नहीं होगा और z होगा. यानी ये ऐसा point होगा. इस किस्म का point जो भी आपके पास है जिसमें x और z है लेकिन y नहीं है, एकदम आपको ये पता होना चाहिए कि ये point XZ प्लेन में लाई करता है. यानी मेरा क्वेश्चन था ए पॉइंट इन XZ प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट? व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट? इट्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0. इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. दिस इज वेरी सिंपल. नाउ द थर्ड वन इज सी द थर्ड क्वेश्चन इज, now the third question is like this. Name the octants in which the following points must lie. 1, 2, 3. बताइए ये किस octant में है? ये आपको बताना है कि ये किस octant में है. देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज इन द फर्स्ट octant. सो हम यहां से आंसर में लिखेंगे इट इज इन द फर्स्ट octant. This is in the first octant. Now similarly if you have 4, -2 and 3, बताइए ये किस ऑक्टेंट में है? 4, -2 and 3. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज इन द फोर्थ ऑक्टेंट. ये फोर्थ ऑक्टेंट में लाई करता है. सिमिलरली यू हैव, आई विल टेल यू वन मोर, 2, -4, -7, 2, -4, -7, 2, -4, -7, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. इट इज इन द 8th ऑक्टेंट. सो दिस इज इन द 8th octant. So in this way you can solve question number 3. आपको सिर्फ बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में किस पोजीशन पे कौन सा पॉइंट लाई करता है. उसके लिए आपको इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, राइट? नाउ आई विल कम टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. दैट इज अगेन ए सिंपल क्वेश्चन, very simple. See, this question is, question number 4 is fill in the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks. ये है the x-axis and y-axis. X-axis and y-axis together determine a plane known as
known as dash 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 dash. X-axis and Y-axis together determine a plane known as, see, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताया है. This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. The x-axis and y-axis determine a plane, this plane, determine this plane, and you know this plane is called xy plane. This is called xz plane, and this is called yz plane. So these are the planes. So this is xy plane, this is xz plane, and this is yz plane. So ये planes है, simply planes है कि ये एक plane है, ये दूसरा plane है और ये तीसरा plane है. इसी तरह से the coordinates of the point in xy plane are, the coordinates of the point in xy plane are, जो भी xy plane में point होगा उसमें x भी होगा, उसमें y भी होगा, उसमें z 0 होगा, यानी वो ऐसा होगा x, y और 0. बिल्कुल सिंपल है. Now third, coordinate planes divide the space into, coordinate plane divide the space into dash octants. बताइए, ये मैंने अभी बताया कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स यानी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पूरे स्पेस को कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है? 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है. सो ये आपका दिस इज द 8th ऑक्टेंट, राइट? सो दिस इज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, then 2, then 3 and then 4. That is the end of exercise 12.1. But before this exercise 12.1, you must go through the examples also. There are 2 examples in the textbook on page number 271. You can go through these 2 examples as well. Now after that I will come to another exercise, that is exercise 12.2. See now exercise 12.2 के बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ. एक्सरसाइज 12.2 वेरी सिंपल है. ये है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डिस्टेंस हम बिटवीन द 2 पॉइंट्स किस तरह से निकालते हैं, उसी पर है आपकी एक्सरसाइज 12.2. यानी 12.2 एक्सरसाइज है. पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3, 5 and 4, 3 and 1. This is A and this is B. Now how to find distance from the point AB? Distance from the point AB is, again yesterday this lecture, previous lecture, 4 minus 2 whole square, then 3 minus 3 whole square, then 1 minus 5 whole square, then under root of 4, this is 0, this is 16, that is under root of 20 is the distance between these 2 points. देखो किस तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स. ये आपका पहला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का. इसी तरह से इस पहले क्वेश्चन के 1-2 पार्ट्स और हैं जो आप खुद कर सकते हैं. उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी अगेन सिंपल. दिस इज शो दैट द पॉइंट्स, अब आपके पास पॉइंट्स हैं, वो है -2, 3, 5 और दूसरा पॉइंट है 1, 2 and 3 और तीसरा पॉइंट है 7, 0 and -1 आर कोलिनियर. ये आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. ये A है, ये B है और ये C है. देखिए कोलिनियर कैसे दिखाएंगे. हम पहले AB डिस्टेंस निकालते हैं. AB इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. फिर हम निकालेंगे BC डिस्टेंस, B से C तक. कोलिनियर मतलब है जो एक ही लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स हैं. इसलिए हम पहले AB डिस्टेंस निकालते हैं, फिर BC निकालते हैं और फिर AC निकालते हैं. हम AB और BC को ऐड करके अगर वो दिखाएंगे AC के बराबर है तब हम कहेंगे कि ABC जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है. अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको पहले AB डिस्टेंस निकालनी है, फिर आप BC निकालेंगे, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, फिर आप टोटल AC डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और ये और इसका सम इसके बराबर आना चाहिए. अगर वो आ गया तभी हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, राइट? नाउ अनदर क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरीफाई द फॉलोइंग. देखिए पहला है 0, 7, -10, ये एक पॉइंट है. देन 1, 6 and -6 एक और पॉइंट है.
4, 9 एंड -6, ये 3 पॉइंट्स हैं, आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, कैसे दिखाएंगे? हम फिर से डिस्टेंस निकालेंगे। हम पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बी सी डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ए सी डिस्टेंस निकालेंगे, यानी हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालेंगे। जब हम तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, अगर तीनों डिस्टेंसेस में से 2 डिस्टेंसेस सेम आ गए, अगर कोई भी 2 सेम आ गए, या ये हो रही है या ये हो रही है या ये हो रही है, हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज यू नो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 sides are equal, right? So this is very simple question. You find AB distance, then you find BC distance again by distance formula, then you find AC distance. जब आपके पास तीनों डिस्टेंसेस का पता चलेगा, अगर 3 डिस्टेंसेस में 2 डिस्टेंसेस बराबर हैं, you can say that this is an isosceles triangle. हाँ, अगर ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं तो आप कहेंगे it is an equilateral triangle. It is an equilateral triangle. So this was your question number 3 का first part. Now again there is a राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको कैसे पता चलेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपको पहले तीनों डिस्टेंसेस निकालने हैं और उन तीनों डिस्टेंसेस में आपको फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, यानी AC स्क्वायर अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, तब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ज़रूरी नहीं है कि AC स्क्वायर, और यू कैन से AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यू कैन से BC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इन 3 में जो भी इसमें सेटिस्फाई हो जाता है, तभी आप इसको कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, नाउ वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4. सी क्वेश्चन नंबर 4 अब स्लाइटली डिफरेंट है, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही है, लेकिन इट इज स्लाइटली डिफरेंट दैन दीज 3 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 4 इज find the equation of set of points. Find the equation of set of points which are equidistant from the points which are equidistant from the points 1, 2, 3 and 3, 2 and -1. See, this is the question. Find the equation of set of points which are equidistant from these 2 points. Let the point be, say, x, y and z. Now there are 2 points A and B. Now you know the coordinates of A are 1, 2 and 3, and that coordinates of B are 3, 2 and -1. Now this point is equidistant. जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक है, यानी actually this point moves. It moves in such a way that this distance and this distance is same. So what is PA distance? PA distance is under the root of x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square plus z minus 3 whole square. Now again PB distance is under the root of x minus 3 whole square, y minus 2 whole square, z plus 1 whole square. Now according to the question these 2 distances are same. आप इन दोनों को सेम करो, फिर रूट कैंसिल करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट इक्वेशन. आपको कोई ना कोई इक्वेशन मिल जाएगी. दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स जो आप निकालना चाहते हैं. यानी जब आप इन दोनों को बराबर रखेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो ये और ये जब बराबर रखेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको ऑपरेट करेंगे A-B होल स्क्वायर, A-B होल स्क्वायर, यहाँ से फिर कैंसिलेशन हो जाएंगे और आपको एक छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी. दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ दीज पॉइंट्स. दिस वाज योर 4th क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर सकते हैं. दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 12.2. बट अगेन बिफोर एक्सरसाइज 12.2 यू मस्ट गो थ्रू 6 एग्जाम्पल्स जो इस किताब से पहले हैं, इस एक्सरसाइज से पहले हैं. वो 6 के 6 एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं. द एग्जाम्पल्स आर बेस्ड ऑन द सेम डिस्टेंस फॉर्मूला. Now we have one more exercise, that is exercise 12.3, which is again based on section formula that I am going to tell you about. I will solve some questions of question number 12.3. Now one more exercise, that is 12.3.
and this is the first question of exercise 12.3. But this exercise 12.3 is based on the section formula, which we have already discussed in the previous lecture. The section formula is find coordinates of a point which divides the line segment joining the points this and this in the ratio of 2:3 internally and externally. I have already discussed internal division and external division in the previous lecture. See, what is the question? You are given a point A whose coordinates are -2, 3 and 5, and there is one more point B, that is 1, -4 and 6. You join these 2 points like this. You join these 2 points, and there is a point, say R. There is a point R which is in between A and B somewhere, but that R divides it in the ratio of 2:3. See, we don't know the coordinates of R. हमें coordinates of R के बारे में कुछ नहीं पता है. हमें A पता है, हमें B पता है, लेकिन हमें R के बारे में सिर्फ ये पता है कि R AB को 2:3 रेशो में डिवाइड करता है. आपको R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं R की जगह लिख रहा हूं X, Y एंड Z. मैं मानूंगा R के कोऑर्डिनेट्स ये हैं. तब X किसके बराबर है? देखो, ये L है, ये M है, ये X1 है, ये Y1 है, ये Z1 है, ये X2 है, ये Y2 है, ये Z2 है. आपके पास फॉर्मूला है LX2 प्लस MX1 अपॉन L प्लस M. ये तब आप यूज करेंगे जब आपको X का वैल्यू निकालना है ना. L की जगह 2 है, सो आप 2 लिखिए इंटू X2 इज दिस वन, दिस इज इंटू 1 प्लस M is 3, see M is 3, then X1 is -2 अपॉन 2 प्लस 3, राइट. सिमिलरली Y इज इक्वल टू, फिर Y जो होता है LY2 प्लस MY1 अपॉन L प्लस M. Y के वक्त सिर्फ Y यूज हो जाएंगे, X के वक्त सिर्फ X यूज हो जाएंगे. L इज अगेन 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3. फिर उसके बाद Z इज इक्वल टू LZ2 यानी LZ2 प्लस MZ1 अपॉन L प्लस M. उस वक्त Z के वक्त Z यूज हो जाएंगे. दिस इज अगेन 2 इंटू 6 then 3 into 5 upon 2 plus 3. Now you can simplify it. This is 6, but -6 plus 2 is -4 यानी x जो है this is -4 divided by 5. Then y is 9 minus 8 is 1 divided by 5. Then z is 12 plus 15. 12 plus 15 is 27 divided by 5. So these are the coordinates of the point R. So these are the coordinates of the point R, which divides AB in the ratio of 2:3 internally. हाँ, now externally के वक्त क्या करेंगे? Externally के वक्त हम यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस. उस वक्त यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, इधर माइनस, यहाँ माइनस. This is minus and this is minus. Again you simplify, you will get another coordinate. This is very simple question, how to find the coordinates of the point which divides the line joining the two given points in a given ratio, once it is a given. But ratio, this point can be either internally or it can be externally. If the point is internally, you have to use plus everywhere. If it is externally, you have to use minus everywhere, which we have already discussed in detail in the previous lecture. So previous lecture का जो section formula है internal और external division, वही हम exercise 12.3 में use करते हैं. Now another question. Now one more question is, that is question number 2. That is question number 2. Given P is 3, 2 and -4 and Q is 5, 4 and -6, then R is 9, 8 and -10 are collinear. ये collinear है, it is given. Find the ratio in which Q divides R. Find the ratio in which Q divides R. This is your question.
See, P and Q and R are the collinear points. देखिए P यहाँ है, उसके बाद Q है और उसके बाद R है, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2 and -4, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 4 and -6, और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 8 and -10. This is P, Q and R. So this is P, this is Q, this is R. These are the 3 points. Now आपको बताना है कि Q डिवाइड करता है PR को किस रेशो में. ये सेक्शन फॉर्मूला का रिवर्स है, सेक्शन फॉर्मूला का कन्वर्स है. सेक्शन फॉर्मूला में हमें रेशो दिया होता है, हम ये पॉइंट निकालते हैं. इस वक्त यही पॉइंट दिया है, हमें रेशो निकालना है. जब रेशो निकालना हो, यू शुड राइट द रेशो इज 1:k. सो लेट द रेशो बी 1:k. Right? Now what is the first coordinate? First coordinate is 5. So apply the section formula. 5 is equal to, ये L है, ये M है, LX2 यानी 1 into 9 K into 3 upon 1 plus K. बिल्कुल simple. Now you cross multiply. 5 plus 5K is equal to 9 plus 3K. That means 2K is equal to 4. That means K is equal to 2. Now once K is 2, then what is the ratio? हमने ratio रखा है 1:K. That means ratio is 1:2. This is how to find the ratio. जैसे एक पॉइंट से आपने ये लिया 5 यानी x, आपको पता है x is LX2 plus MX1 upon L plus M. Now L तो 1 है, M तो K है, ये तो x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है. आपने x is equal to LX2 plus MX1, एक ही फॉर्मूला से, एक ही चीज़ से, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से आपने निकाल दिया. हाँ, आप y भी ले सकते थे, मगर तब आपको लेना है y is equal to LY2 MY1 अपॉन, वह भी सेम रेशो आ जाएगा. सो रेशो इज 1:2. सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2. राइट? नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द रेशो, फिर से रेशो निकालना है, इन विच YZ plane divides the line segment formed by joining these 2 points. देखिए ये एक पॉइंट है आपके पास -2, 4 and 7, और ये दूसरा पॉइंट है 3, -5 and 8. जब हम इनको ज्वाइन करते हैं एक लाइन बन जाती है, और इस लाइन को एक प्लेन कट करता है, वो प्लेन है YZ प्लेन. आपको बताना है कि YZ प्लेन इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन जब करते हैं, एक लाइन बनती है, उस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा. फिर से हम मानेंगे तो रेशो इज 1:K. हम लिखेंगे लेट YZ प्लेन डिवाइड AB इन द रेशो ऑफ 1:K. ओके. नाउ YZ प्लेन पे क्या पॉइंट होगा, उसमें x नहीं होगा, उसमें ऐसा होगा, बिकॉज यू नो YZ प्लेन पे जब भी कोई पॉइंट होता है उसमें x कोऑर्डिनेट नहीं होता है, तो 0 YZ. अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, L क्या है ये, M क्या है ये, x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2 ये. सेक्शन फॉर्मूला यूज करिए, पहला कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 किसके बराबर होगा फिर, LX2 यानी 1:3 देन K into -2 upon 1 plus K. Now cross multiply. That is 0 is equal to 3 -2K. That is 3 -2K is equal to 0. That is 2K is equal to 3. That means K is equal to 3/2. देखो K का वैल्यू आपको 3/2 आ गया. जब आपको K का वैल्यू 3/2 आ गया तो रेशियो होगा 1:K. That is 1:3/2. That is 2:3. So ratio 2:3 होगा. Now the ratio is 2:3. Ratio is 2. That means YZ plane divides AB in the ratio of 2:3. Right? This is another question. This was question number 3. Now one more question, that is question number 5. Very important question. Very important question. Find the coordinates of the point which trisect the line segment joining the points this and this. यानी ये सवाल जो है इसमें 2 केसेस अराइज हो जाएंगे. केस 1 मैं पहले बताऊंगा आपको. केस 1 है, अगर कोई भी पॉइंट है 4, 2 and -6
और फिर दूसरा पॉइंट है 10 माइनस 16 एंड 6, राइट। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ऐसे, नाउ देयर इज अ पॉइंट इन बिटवीन, लेट अस से द पॉइंट इज आर, विच ट्राइसेक्ट्स, जो ट्राइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को। ट्राइसेक्ट मीन्स जो इसको 1:2 रेशो में डिवाइड करेगा, ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 रहता है, यहाँ से 2 हिस्से रहते हैं, या उल्टा यहाँ से ही 2 रहेंगे, यहाँ से 1 रहेगा। इसलिए मैंने केस 1 में लिया, लेट द रेशो बी 1:2। कैन यू फाइंड दिस पॉइंट हियर? यस, यू कैन फाइंड बाय सेक्शन फॉर्मूला। अगर आप x, y और z लेंगे तो आपका x आ जाएगा, 1 × 10, then 2 × 4 upon 1 + 2, that is 18/3, that is 18/3 is 6। इसी तरह से y आ जाएगा, इसी तरह से z भी आ जाएगा। तो आपको एक कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे r1 पॉइंट के, ठीक है। फिर आप दूसरा लीजिए, ऐसे ही फिर से लीजिए, ये p है, ये q है। अगर r इधर होगा यानी रेशो होगा 2:1, यानी अब r2 मैंने रखा, तब भी एक और पॉइंट मिल जाएगा x, y एंड z। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 2। सो r1 मिलेगा और r2 मिलेगा, यानी r1 और r2 फिर 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इसको ट्राइसेक्ट करेंगे, जो इसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1, 2 और 3, यानी ये 1, 1 और 1, टोटल रेशो 1 रहेगा, 1:1:1। यानी पहले आपको फर्स्ट केस में लेना है r1, रेशो लेना है 1:2। दूसरे केस में आपको लेना है रेशो इज 2:1। तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 2 पॉइंट्स। वो दोनों पॉइंट्स निकाल के फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये P है, ये Q है, ये R1 है और ये R2 है। ये भी एक पॉइंट मिलेगा, ये भी, ये रेशो 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। उसका मतलब है ये भी इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है और ये पॉइंट भी इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, बिकॉज ट्राइसेक्ट मीन्स रेशो इज either 2:1 और द रेशो इज 1:2. So with this question number 5, I have finished your exercise 12.3 also. Now we are left with only one exercise, that is the miscellaneous exercise, which I am going to teach you in the next lecture.